pleasant good afternoon to all of you. Today, I am extremely honored and privileged to have the opportunity to address you all in this online celebration of National Sports Day to commemorate 115th birth anniversary of the hockey wizard Major Dhyan Chand, who is regarded as one of the greatest player of all time. Today I am here to put forth my views regarding importance of games and sports. And in this context, I would like to start with the role of games and sports in Kendriya Vidyalaya Sangathan. The KVS has structured the school activities in such a manner to ensure an all-round development of the students. Instead of confining to mental development through lessons in the classroom, physical and health education is an integral part of the academics. Students are motivated and encouraged to actively take part in various activities at different levels, starting from Vidyalaya level, next cluster level, then to regional level, and finally to national level. In Kendriya Vidyalaya Sangathan, we have taken up various projects like Swasth Bacche, Swasth Bharat. At the same time, we have gladly joined the mission of Fit India movement. My whole idea can be very well expressed in a small famous quote: a sound mind in a sound body. One cannot have sound mind without a sound body. And of course, sound body comes from physical activities. And all these physical activities not only keeps us fit and well as it helps us to develop multiple qualities or multiple skills. Like it helps us to develop a sense of togetherness, leadership quality, courage, stamina, physical strength, analytical skill, strategy, patriotism, teamwork, coordination, and my list is quite long. But nowadays, the increasing popularity of computers, video games, and television makes the children to be very inactive in their lifestyle. Our children, they like to sit at home, sit in front of their computer and enjoy different types of video games or computer games. And all these habits, I will consider these habits as bad habits, are making our children ill. At a very young stage or young age, they all are getting different kind of physical ailments. So it is high time, and this is need of the hour. We should open our eyes and we should think about it very seriously. Games and sports are the ways of enhancing the children's mental and physical growth. Games and sports help them in character building and provides them intense energy, vitality, and you can just say that strength. A healthy diet and active lifestyle. This is the simple mantra to be a successful person in your life. So always
follow a proper routine, a good lifestyle, and you should check your food habit. So, adding up a proper routine or a lifestyle, games and sports in your daily life will definitely help you to have a healthy life. Not only this, being interested in games and sports activities make us learn about how to tackle with different situation of life. It just simply keeps our body and mind in a relaxed state, and it helps to develop the habit of working together. It just develops the sense of friendliness. It develops a sense of mutual understanding among each other. Games and sports activities which makes a person more capable with high level of efficiency. It just simply removes the mental exhaustion and makes us capable to do any hard work. So, it's a request from my side that as sports activities are very necessary for all of us, especially for children and for the youth of our country. As I said, that it just simply stimulates the physical and mental growth. It improves memory level, your concentration power, and of course, learning capacity of the children. So, one more time, I would like to request all of you to take some time off from your busy schedule and go out to play. Do not limit your lives into just books and technological devices. Come out, explore this world, come out from your shells. The life is very, very beautiful. Last but not the least, a healthy man means a healthy family, and a healthy family which ultimately leads to healthy society. I would like to repeat it one more time, that a healthy man means healthy family which ultimately leads to a healthy society. This is the only way to New India. So let's reform our country in a better way. Stay fit, stay healthy. Thank you so much. Good morning to all. Myself Brijesh Kumar Sera, TGT Physical and Health Education, Kendriya Vidyalaya, Malda. Would like to welcome to all and Happy National Sports Day. In this online celebration of National Sport Day today, which is 29th August 2020. First of all, I would like to put some lights upon great Indian hockey wizard मेजर ध्यानचंद। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस 29 अगस्त संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरा विश्व इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जानता है। इन्होंने 21 साल की उम्र में हॉकी खेलना प्रारंभ किया और जीवन पर्यंत हॉकी को समर्पित कर दिया। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 400 इंटरनेशनल और 1000 से भी ज़्यादा गोल किए। इतना ही नहीं, इन्होंने हॉकी के क्षेत्र में 1928, 1932 एंड 1936 में आयोजित हुए ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया और यह तत्कालीन गुलाम भारत के लिए किसी भी चमत्कार से कम नहीं था। विश्व की तत्कालीन महाशक्ति देशों में मेजर ध्यानचंद की लोकप्रियता और उनके क्रेज को देखकर यह सहज ही कहा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद जी ने पूरे विश्व को भारतीय प्रतिभा और कौशल के प्रति सोचने के लिए मजबूर किया। मेजर ध्यानचंद के हॉकी के प्रति
जुनून और रिकॉर्ड को देखते हुए एक पंक्ति याद आती है कि खेल में रिकॉर्ड वही बनाते हैं जिन्हें खेलों से इश्क हो जाता है। इनके योगदान को देखते हुए भारतीय गवर्नमेंट ने इन्हें 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनके नाम पे भारतीय डाक विभाग ने स्टाम्प जारी किया। दिल्ली में स्थित नेशनल स्टेडियम का नामकरण भी इन्हीं के नाम पे किया गया है। और भी न जाने कितने स्कूल, कॉलेजेस, रोड, पार्कों का नाम भी इन्हीं के नाम पे रखकर भारतीय समाज और भारतीय सरकार ने श्रद्धांजलि देने का काम किया है। परंतु ये श्रद्धांजलि तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक भारत खेल के जगत में अपने सपनों को साकार करेगा, और मैं इसके लिए युवा पीढ़ी से आह्वान करता हूँ। कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति की महानता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके साथ कितनी बातें या कहानियाँ जुड़ी हैं। जो भी किसी भी महान खिलाड़ी की महानता को दर्शाता है। ऐसे ही महान खिलाड़ी भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और हॉकी के जादूगर के नाम से फेमस मेजर ध्यानचंद जी थे। वे 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर टीम के मेंबर रहे, जिसमें 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस एंड 1936 बर्लिन ओलंपिक शामिल है। अपने पहले ही मैच में 3 गोल और पहले ओलंपिक में 35 गोल और पूरे कैरियर में 400 इंटरनेशनल गोल करने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस को ही नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत भारतीय गवर्नमेंट ने 2012 में की थी। जहाँ तक मेजर ध्यानचंद जी का बात है, कि उनका जन्म 29 अगस्त 1905 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से कंप्लीट किया। कहते हैं कि हॉकी से पहले मेजर ध्यानचंद जी का लगाव कुश्ती में हुआ करता था, पर 1922 आर्मी ज्वाइन करने के बाद ही सबसे पहले मेजर ध्यानचंद ने वहाँ से हॉकी खेलना स्टार्ट किया। उसके बाद हॉकी से इनका इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि यह मून नाइट में भी हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे, जिसे देखकर इनके अफसरान, कोलीग्स और दोस्त इन्हें चांद के नाम से भी बुलाते थे। 1927 में लंदन फाल्कस्टोन फेस्टिवल में ब्रिटिश आर्मी टीम के अपोजिट खेलते हुए 10 मैचों में इन्होंने 6 गोल किए। वहीं 1928 समर ओलंपिक में खेलते हुए इन्होंने टोटल 14 गोल किए और फाइनल में इन्होंने 3 में से 2 गोल किए। ईयर 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में इन्हें इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन बना दिया गया, जहां इंडिया ने अमेरिका को फाइनल मैच में 24-1 से हराकर अपना दूसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। बात करें 1936 बर्लिन ओलंपिक की, जिसमें ट्रायल मैच में ही भारतीय टीम जर्मनी से 4-1 से हार गई थी, जिसके बारे में मेजर ध्यानचंद जी अपने बायोग्राफी में गोल में लिखते हैं कि जब तक मैं जीवित रहूँगा इस हार को कभी नहीं भूलूँगा। इस हार ने हमें इतना अंदर से हिला कर रख दिया है कि हम पूरी रात सो नहीं पाए। वे 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर टीम के मेंबर रहे और अपने कैरियर में 1000 से भी ज़्यादा गोल किए। अपने समय में उन्हें फुटबॉल के पेले और क्रिकेट के सर ब्रॉडमैन के समतुल्य रखा जाता है। उनके सम्मान में सर ब्रॉडमैन कहते हैं कि जब मेजर ध्यानचंद जी
गोल करते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि कोई बैट्समैन रन बना रहा हो। मेजर ध्यानचंद जी जब फील्ड में हॉकी खेलने उतरते हैं तो बॉल उनके स्टिक से मानो चिपक सी गई हो। अपने हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक को वहाँ के अथॉरिटी ने तुड़वा के दिखाया कि कहीं उनके हॉकी स्टिक में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या मैग्नेट तो नहीं लगा जिस कारण गेंद उनके हॉकी स्टिक से चिपक जाती हो। एक और बात है, वियना में एक स्पोर्ट क्लब के सामने उनके एक ऐसी स्टैचू लगाई गई थी जिसके 4 हाथ और चारों हाथ में हॉकी स्टिक थी, जो उनके महान खिलाड़ी होने का सबूत देती है। 15 अगस्त 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी और भारत के बीच फाइनल मैच होना था, जिसे देखने के लिए भारत से बहुत सारे राजा महाराजा और जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी आया था। उनके साथ करीब वहाँ पे 40,000 ऑडियंस भी मौजूद थी। पिच गीली थी। भारतीय हॉकी खिलाड़ी के पास उतने अच्छे स्पाइक्स नहीं थे, फिर भी भारतीय टीम पहले हाफ में 1-0 से आगे चल रही थी। सेकेंड हाफ में मेजर ध्यानचंद जी ने अपने स्पाइक्स उतारकर नंगे पैर ही ग्राउंड में उतर गए, जिसके बाद भारतीय टीम ने एक के बाद एक लगातार 7 गोल किए और जर्मनी टीम को पूरी तरह से दबाव में ला दिया। इस दबाव को जर्मनी टीम झेल नहीं पाई और वह अपना रफ गेम खेलने लगी, जिस कारण मेजर ध्यानचंद जी को चोट भी लग गई और उनका एक दांत भी टूट गया। फर्स्ट एड के बाद जब मेजर ध्यानचंद जी ग्राउंड में वापस आए तो उन्होंने अपनी टीम को निर्देश दिया कि अब हम गोल न करके सिर्फ जर्मन टीम को अपनी स्किल दिखाएंगे। जब भारतीय टीम खेलने लगी तो वो गेंद को जर्मन टीम के गोल पोस्ट के पास ले जाकर बैक पास कर देती। गोल पोजीशन होते हुए भी गोल न करके वो बैक पास करना जर्मन टीम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह आश्चर्य भ्रमित थे कि क्या हो रहा है, जिस कारण से उन्हें बहुत शर्मिंदगी भी हो रही थी। और इसको देखते हुए हिटलर भी वहाँ गुस्से से बीच मैच में ही चला गया। नेक्स्ट डे हिटलर मेजर ध्यानचंद जी को अपने आवास पे बुलाता है और उनको कहता है कि आपको इंडिया ने क्या दिया। उनके पुराने और फटे हुए जूते की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर आप जर्मनी की तरफ से खेलते हैं तो हम आपको अच्छे कपड़े और आर्मी में एक हायर पोस्ट देंगे और जर्मनी की नागरिकता भी देंगे, जिसे मेजर ध्यानचंद ने बहुत सहजता से मना कर दिया और कहा कि वह जीवन पर्यंत भारत के लिए ही खेलेंगे, क्योंकि वह भारत में जन्मे हैं और भारत में ही रहेंगे और भारत में ही उनकी मृत्यु होगी। ऐसे थे हमारे मेजर ध्यानचंद जी, उन्होंने भारत के लिए खेलते हुए इतने सारे गोल्ड मेडल दिलाए और भारत को विश्व पटल पे एक अच्छा सम्मान भी दिलाया। अगर हम खेल की दृष्टि से भारत के इतिहास को देखें तो हमें गौरव की अनुभूति होगी। खेलों के दृष्टि से भारत का इतिहास काफ़ी समृद्ध रहा है। यहाँ कई तरह के मानसिक और शारीरिक एबिलिटी वाले गेम देखने को मिलते हैं, चाहे वो चाइल्डहुड गेम हो जिसमें आइस बाइस, धप्पा, भस्मासुर, हाथी छू, और चाहे वो मानसिक एबिलिटी वाले गेम चौपड़, शतरंज, सांप सीढ़ी आदि हों। भारत में सबसे ज़्यादा फिजिकल एबिलिटी वाले गेम देखने को मिलते हैं, जिसमें मैराथन, तीरंदाजी, कुश्ती, खो खो, कबड्डी, नौकायन आदि शामिल हैं। भारत में शारीरिक दक्षता का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। प्राचीन भारत में खेलों और फिजिकल एबिलिटी का सिर्फ प्रचलन ही नहीं, अपितु उसका पर्याप्त महत्व भी प्राप्त था। और आधुनिक समय में भी भारत ने खेलों के लेके काफ़ी उदारता दिखाया है।
विश्व के अनेक देशों का खेल, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, अन्य भी जितने भी इंटरनेशनल गेम्स हैं जिसको भारत ने बहुत सहजता से अपना लिया है और उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहा है। खेलों के महत्व कर अनेक महापुरुषों ने कई तरह से समय समय पर परिभाषित भी किया है। अरस्तु का स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आधुनिक समय में बॉडी फिट तो माइंड हिट बन जाता है। कुछ इसी तरह का भाव फिट इंडिया मूवमेंट की उद्घोषणा करते समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि फिट इंडिया में निवेश 0%, लेकिन इसका रिटर्न असीमित है। आधुनिक समय में खेल सिर्फ पैशन ना होकर कैरियर का भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। खेल के इसी महत्व को समझते हुए भारत सरकार बहुत सारे अवार्ड्स आज के दिन प्रदान करती है, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और मेजर ध्यानचंद अवार्ड शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ विभिन्न नौकरियों में भी खिलाड़ियों के लिए खेल कोटा सुनिश्चित किया गया है। खेल दिवस की शुभकामना के साथ मैं एज अ फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन टीचर की तरफ से पेरेंट्स को यह निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को पहचानें तथा उसे निखारने में सिर्फ बच्चे को पूरी छूट ही न दें, बल्कि उनकी मदद करें, क्योंकि कहते हैं ना, ज़िंदगी भी एक खेल है और यह आप पर निर्भर करता है आप खिलाड़ी बन के जीते हैं या खिलौना। धन्यवाद, नमस्कार। मैं सच्चिदानंद झा राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में सभी छात्र एवं अभिभावकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हमारी जिंदगी में खेल कूद की महत्वपूर्ण भूमिका है। खेल जहाँ शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, वहीं खेल के क्षेत्र में नित्य नवीन संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। खेल के प्रति हमारी पुरानी मानसिकता, जिसमें कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, यह आज पूरी तरह बदल चुकी है। मेजर ध्यानचंद जी, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं, उन्होंने हॉकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया। आज के परिवेश में हमारी युवा शक्ति विभिन्न खेलों में अपना कैरियर तलाश कर रही है। यह एक नया परिवर्तन है खेलों की पुरानी मानसिकता के खिलाफ। हमारा केंद्रीय विद्यालय अनेक स्तरों पर खेलों को प्रोत्साहित कर रहा है। विद्यालय स्तर पर शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ खेलों से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है। इन आयोजनों के द्वारा एक तरफ छात्र जहां खेलों के द्वारा अनुशासन को सीखते हैं, वहीं खेल छात्रों को स्वस्थ रखने तथा विभिन्न खेलों में अपना कैरियर बनाने का अवसर भी प्रदान करता है। भारत सरकार के द्वारा स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ भारत तथा फिट इंडिया जैसे कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए खेल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यह भूमिका आज कोविड-19 की विश्वव्यापी महामारी की परिस्थिति में भी महत्वपूर्ण हो जाती है। खेल जहां हमें उच्च स्तर का आत्मविश्वास पैदा करता है, वही हमें अनुशासन भी सिखाता है, जो हमारे साथ पूरे जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करता है। योग ग्रंथों में जिन 84 आसनों का वर्णन है, वह शरीर की मजबूती के लिए ही है। मजबूत शरीर में ही मजबूत मस्तिष्क का वास होता है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन
भारत का शाश्वत आदर्श वाक्य है। कालिदास ने भी रघुवंश में मजबूत शरीर की महत्ता बताते हुए कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह शरीर खेल और व्यायाम से ही मजबूत होता है। व्यायाम की महत्ता बताते हुए संस्कृत ग्रंथों में अनेक श्लोक कहे गए हैं। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से ही अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। आज मैं इस विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य श्रीमती अन्नू कुमारी, गेम्स टीचर श्री BK सेरा को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर कुछ बोलने का मौका दिया। अंत में हम लोग एक शपथ लें, खेल दिवस के अवसर पर खेल और व्यायाम को अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाएंगे। Badminton, basketball, and many sports like this keep us mentally and physically stable. Hello, everybody. How are you doing? I hope you all are doing good. So, today, on the occasion of Sports Day celebration, we all are going to celebrate the Sports Day. So, first of all, why is Sports Day celebrated? It is celebrated due to commemorate the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand. Across the country on 29th of August, Khel Ratna is awarded to the athletes for spectacular and outstanding performances in the field of sports over the period of 4 years. Now, moving on to fitness at home. To be a good mentor, you will have to be first a good follower. So, as me myself follow the planning and plotting for fitness throughout the day, I'll be able to judge you and guide you more better. So, what is the simple and the finest key of fitness? Yes, you're right. That's yoga and exercise on daily basis. Every morning, if you're not able to do exercises yoga, you can do cycling or anything or any physical activity that you like to do. Another thing that I would like to emphasize is you will have to have a very better and a balanced diet. The diet should contain fruits, dry fruits, and food with low calories and sugar, because if you take more sugar, it will increase the insulin level and it will get into your cells. So just because of that, you should have a balanced diet. And the third and the major important thing of all is you to have water and water. Water is a very important part of your life. You should take as much water as much you can, because it will keep your body hydrated during this dry summer season. So keep healthy, keep fit. Thank you. Have a healthy day. Start stronger, end stronger. Hello everybody, today I am Royul Haq, student of Kendra Vidyalaya Malda, is here to encourage you for COVID-19 fitness at home. I am very thankful to everyone who give me such a great opportunity. As you know, India celebrates our National Sports Day on 29 August, on the birth of anniversary of hockey legend Shri Dhyan Chand. He was the most accomplished hockey player during 1920s to 1940s, a Padma Bhushan award winner. Because of pandemic COVID-19, we cannot go outside and bore our daily routine by doing nothing. Just wake up, eat breakfast, eat food, watching television and all. So sometimes we forget doing our exercise like yoga, physical fitness, meditation and all. Regular physical activity benefits both the body and mind. It can reduce high blood pressure and high manage weight and reduce the risk of heart disease, stroke and all conditions that increase susceptibility to COVID-19. There is nothing crucial than health and fitness. When we are healthy, we are able to enjoy our life well. We are able to laugh, smile, enjoy food, talk to our near and dear and sleep well.
Health and fitness keeps our body and mind healthy and peaceful. It brings the feeling of well-being physically and mentally and socially and all type of reasons. So, do you exercise regularly, eat healthy, stay fit, stay home, stay safe. Thank you. Hello everyone from KB Malda. Uh, I hope you are all safe and you staying at home in this pandemic COVID-19 situation. I'm here to speak in front of you about the sports and its importance. Before I address the various importance, I thank to your principal in charge, Ms. Anu Banerjee, who invite me to speak or address about the sports and its importance in this National Sports Day, which you or we all going to celebrate on 29th August. I introduce myself. I'm a ex KVN. I have done my school from KB Malda, and I have passed class 10 long back, that is 1994, and I have done my class 2 in from science, that is bioscience. I was mediocre student. I used to manage both sports and academic together. I think those were pass out in 1998 or 2000, they know me very well. I started my sports journey with the support from our games teacher, B.V. Das. He advised me to go to sports, and seriously I'm speaking, somebody needs to be back you up from behind. There are a lot many friends who are still recognize me, remember me, and help me a lot to choose my career in sports. Nowadays I'm working with a school as a physical education department, as a physical education teacher, as a department head. And in my school time, I used to wake up around 5 o'clock in the morning, and our school is almost from Malda town and almost a 7 kilometer. I used to wake up in the 5 o'clock in the morning. I used to run with the help of one of my friend, Sushil. I tell him to ride bicycle, and I will run. At the time, lot many buses from BSF as well as railways as well as NHPCs, they used to cross me early in the morning. So it's my motive that everyone saw me that I'm running, and they also appreciate me my walk, and somehow I have done well in the sports. I was the first student from your school or my school, that is KV, who have selected for national and SJPI, School Game Federation of India. To achieve this, it's not very easy job. I have to work hard. I have to practice morning and evening alone without any coach. Only B.V. Das sir help us to encourage me to do this and that. But from my personal point of view, I have done lot practice to achieve this goal. So I have played for your school or my school for almost 4 years. I have participated in, I'm an athlete, so I have participated in 100 meter, 200 meter, 400 meter, long jump and relay. And first time I bring almost 6 medals, gold medals for my school in 1994, that is in class 10. But after that I was selected for sports hostel in Gwalior. I was there in up to class 11. Then somehow
it doesn't suit me, so I come back, and I learned from there. I had a coach over there, so, and after that I have completed my class 12 from KV only as a in science background. In class 12 I played for SGFI, School Game Federation of India, and I made a record in long jump which lasts for almost 5 years in KVS sports. I got a scholarship also, and then later on it carries in my college level. So purposely I choose my career in sports, and I have applied in Gwalior to do to pursue my further higher education, that is Bachelor of Physical Education and Master of Physical Education and MPhil of Physical Education. There also I have played national level, that is under 20, under 19, and there also I have given much effort in my training. I learned many things from my seniors as well as my coach. To do all these activities, I have gone through various vigorous practice in terms of weight training, in terms of food, in terms of nutrition, in terms of rest. So these are the things, because I believe that winning is not the main factor, but participation is the main factor. In my whole career of sports, I have learned two things. That is, sports help us to understand and overcome failure. Many times I have been, I am not succeed in first attempt, second attempt, but I learned from my mistake. That is one thing one sportsman should always, keep in his mind, that don't hesitate with the failure, but how to overcome the failure, that is, it should be your key role. And because of that, I have succeeded many times, and even you can see various sports person like Virat Kohli, Sachin Tendulkar, Dhoni, Milkha Singh. There are so many athletes. They are not became overnight what do you call sports person. They have given their best valuable time and practice, hard practice, and they learn from various mistakes. Best example, Usain Bolt. He is my ideal, and he from where I learned from him, I learned so many things. He was a failure in Olympic. So what I meant to say, don't think about always winning, but you should learn from failure. The second thing is, participating to win is not should be your motto. Many times you'll only play to win, but when you joining a coaching camp or anything, any area of sports, you join there to become a sports person, not Sachin Tendulkar. You join there to become a good to achieve a good percentage, not Virat Kohli. Okay, so coaching camp teach you how to perfect your style, or to perfect your structure, how to deal with various odd situation. That is about this. But try to understand that you are not here to just to win. You are here to participate, where you can develop your wholesome personalities, that is physical, mental, social, emotional, all. Sports is not about winning, sports is about participation. So I request all the parents and school authorities to encourage your sports. Latest education system also, it is also emphasizes various sports activities as a main subject, where you learn and where you have to focus on various health parameters. So in these words,
I always remember my all teachers who support me. I hope your teacher also support you. My teachers used to be my principal, my mentor, Bibidas sir, and then principal Nandlal Yadav sir, then Barik sir, who is our maths teacher, then Mandal sir, Ganga Chakravarti ma'am, Neela Das ma'am. There are so many teachers who helped. Never forget those days where my teachers, my mentor, my friends, they motivate me to do the sports. The day when I came from nationals, it was a huge gathering, and my sports teacher, he invited me in front of all the students and honored me with medals and certificate, which is handed by our principal sir, Dr. Nandlal Yadav. I feel proud to be a part of KV, and I feel proud to be a part of KV Malda. Still, whenever I passes from Malda, I always go there and I always take a round of my field. Then I go back of the schools where the basketball court is there, the volleyball court is there, now where your present assembly conducted. I really like the atmosphere. So in this National Sports Day, we talk about Major Dhyan Chand ji. He is also called as a legend in our history. He introduced the game of hockey and all over the world by his skill and mastery and dedication in that particular sports. And he is the only one person in our Indian sports who have given much more importance than other sports person. So that's why we celebrate this National Sports Day on 29th August of every year. So in this auspicious day, I request help the students and to motivate the students to go to the field or practice or to engage yourself. There are a lot many things come up nowadays. Even for a sports person, you will also get a good job by doing sports also. Not only you are earning, but you are saving your energy, and you can utilize your energy by doing some sort of other works. So in these words, once again I thank your principal in charge ma'am, who give me the opportunity to address something which is related to sports, and I'm very much thankful to her, and hope the small words which I have said you will keep in your mind, and all these activities to keep yourself fit. Thank you very much. लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा। ए वतन ए माँ जननी, तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम। जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम। जननी अब तो एक ही धुन है, आए तेरे काम। जाग जाग हिंदुस्तां है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जाग जाग हिंदुस्तां है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जागा हिंदुस्तां, जागा हिंदुस्तां।
सपने ये है वतन के हर एक जल्ले को जगमगाना, हम सिखा दे सपने ये है कि खामोश होठों पे कोई तराना, हम सजा दे ऐ वतन 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 ऐ माँ जननी।
चाहे जीते हम चाहे हारे हम, हमें खेलते रहना है। हम दरिया है हम रुकते नहीं, हमें बहते रहना है। चाहे जीते हम चाहे हारे हम, हमें खेलते रहना है। हम दरिया है हम रुकते नहीं, हमें बहते रहना है। जय हिंद हिंद जय इंडिया, जय हिंद हिंद जय इंडिया। जय हिंद हिंद जय इंडिया, माथे पे विजय की बिंदिया। कदमों को संभाले दे ध्यान चल तू चाले, लक्ष्य सामने है चूकना ना कर प्रहार, टूटे ना थके ना तू तो हार मारे, खेल पे तू काबू करे खुद में जान डाले, पग तू ऐसे जैसे पैरों पे लगे हो। किसी खिलाड़ी की महानता को नापने का सबसे बड़ा पैमाना है कि उसके साथ कितनी किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। इस हिसाब से तो मेजर ध्यानचंद का कोई जवाब नहीं था। हॉलैंड में लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक तोड़वाकर देखी थी कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगा है। जापान के लोगों को अंदेशा था कि उन्होंने अपनी स्टिक में गोंद लगा रखी है। हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हों, लेकिन अपने जमाने में इस खिलाड़ी ने किस हद तक अपना लोहा मनवाया था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वियना के स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई थी जिसमें उनके 4 हाथ और उनमें 4 स्टिकें दिखाई गई थी, मानो वो कोई देवता हो। पूर्व ओलंपियन कमांडर नंदी सिंह ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था, अब दुनिया कहती है जी उनके हॉकी के साथ बॉल जो है चिपक जाता था। वो एक ऐसे प्लेयर थे जो कि बॉल को अपने पास रखते ही नहीं थे। ये गलत ख्याल है कि वो बहुत ड्रिबलिंग करते थे, वो बिल्कुल ड्रिबल नहीं करते थे। वो एकदम पास देते थे, सही पास देते थे और एक एक इंच का मिना हुआ पास देते थे, जो कि आगे जिसको देना है पास, जिसको रिसीव करना है उसको कोई तकलीफ ना हो, उसके राइट फुट के सामने बॉल खड़ा हो और वो आगे लेके भागे। उनकी जो काबिलियत थी वो सबसे अच्छी वो थी गोल स्कोरिंग। किसी भी एंगल से वो गोल स्कोर कर सकते थे, कहीं भी हो। उन्होंने बॉल जो है वो जैसा ऐसे है कि जो 2 पोल हैं उनके दिमाग में गड़े हुए और उनके बीच में से बॉल जाना है। उनकी स्कोरिंग पावर बहुत ही अच्छी थी। ध्यानचंद की सौम्यता और नेक नियति के सभी कायल थे। ध्यानचंद की पत्नी स्वर्गीय जानकी देवी ने एक बार बीबीसी को उनके बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। कलकत्ता गए खेलने को तो एक प्लेयर ने इनको एक सर में हॉकी मार दिया। उन्होंने उस लड़के का प्लेयर का कंधा थपथपाया, शाबाश बेटा, कोई बात नहीं है। अब 10 मिनट रह गए थे खेलने का, 10 मिनट में इनने 3 गोल ठोक दिए। तो कहने लगे मैंने बदला ले लिया। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनके साथ खेले और बाद में पाकिस्तान के कप्तान बने INS दारा ने वर्ल्ड हॉकी के एक अंक में लिखा था, ध्यान के पास कभी भी तेज गति नहीं थी, बल्कि वो धीमा ही दौड़ते थे, लेकिन उनके पास गैप को पहचानने की गजब की क्षमता थी। बाएं फ्लैंक में उनके भाई रूप सिंह और दाएं फ्लैंक में मुझे उनके बॉल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत फायदा मिला। डी में घुसने के बाद वो इतनी तेजी से शॉट लगाते थे कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गोलकीपर के लिए भी कोई मौका नहीं रहता था। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन रहे केशव दत्त ने एक बार हमें बताया था कि बहुत से लोग उनकी मजबूत कलाइयों और ड्रिबलिंग के कायल थे, लेकिन उनकी असली प्रतिभा उनके दिमाग में थी। वो उस ढंग से हॉकी के मैदान को देख सकते थे जैसे शतरंज का खिलाड़ी चेस बोर्ड को देखता है। उनको बिना देखे ही पता होता था कि मैदान के किस हिस्से में उनकी टीम के खिलाड़ी और प्रतिद्वंदी मूव कर रहे हैं। याद कीजिए 1986 के विश्व कप फुटबॉल का फाइनल, माराडोना ने बिल्कुल ब्लाइंड एंगल से बिना आगे देखे 30 गज लंबा पास दिया था, जिस पर बुरुचागा ने विजयी गोल दागा था। किसी खिलाड़ी की संपूर्णता का अंदाजा इसी बात से होता है कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर भी मैदान की ज्योमेट्री पर महारत हासिल कर पाए। केशव दत्त का कहना है, जब हर कोई सोचता था कि ध्यानचंद शॉट लेने जा रहे हैं, वो गेंद को पास कर देते थे, इसलिए कि वो स्वार्थी नहीं थे, जो कि वो नहीं थे, बल्कि इसलिए कि विरोधी उनके इस मूव पर हतप्रभ रह जाएं। जब वो इस तरह का पास आपको देते थे तो जाहिर है आप उसे हर हाल में गोल में डालना चाहते थे। 1947 के पूर्वी अफ्रीका दौरे में उन्होंने केडी सिंह बाबू को गेंद पास करने के बाद अपने ही गोल की तरफ मुंह मोड़ लिया और बाबू की तरफ देखा तक नहीं। बाद में उनसे जब उनकी इस अजीब हरकत का कारण पूछा गया तो उनका जवाब था,
अगर उस पास पर भी बाबू गोल नहीं मार पाते तो उन्हें मेरी टीम में रहने का कोई हक नहीं था। केजी कक्कड़ अपने जमाने के नामी कमेंटेटर और हॉकी खिलाड़ी थे। एक बार उन्होंने बीबीसी को पाकिस्तान में ध्यानचंद की लोकप्रियता का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। अफगानिस्तान में अगस्त के महीने में जश्न आज़ादी मनाया जाता है। मुझे 2 दफा मौका मिला कि मैं उस जश्न में शामिल हूँ। पहले 1949 में, जबकि भारत की इंडियन हॉकी फेडरेशन की टीम अफगानिस्तान गई हुई थी, और दूसरी दफा 1952 में, जबकि उन्होंने दादा ध्यानचंद को बुलाया हुआ था एज चीफ गेस्ट। ये जो जर्नी थी 1952 की, वो हमने दिल्ली से पेशावर तक बाई ट्रेन की, और लाहौर पर जब हम आए वो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था, तो इतना हजूम था कि वहाँ के जो प्लेटफॉर्म टिकट थे वो खत्म हो गए। हर एक चाहता था कि वो दादा ध्यानचंद से मिले। और आप अगर जानते हैं कि दादा ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट में थे, और सारी हॉकी उन्होंने पंजाब रेजिमेंट की तरफ से जेहलम में ही खेली। तो वहाँ के लोग जो थे वो दीवाने थे, फिदा थे, वो चाहते थे कि इस व्यक्ति के हम दर्शन करें। और जब वो गाड़ी पेशावर पहुंची, जो कि आखिरी पाकिस्तान का रेलवे डेस्टिनेशन है, तो वो गाड़ी 3 घंटे लेट थी, और हमारे पास कितना खाना था मुझे मालूम नहीं। तो उस खाना को डिस्पोज करते हुए हमें बहुत मुश्किल हुई। 1936 के ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले एक अभ्यास मैच में भारतीय टीम जर्मनी से 4-1 से हार गई। ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा, जब तक मैं जीवित रहूंगा इस हार को कभी नहीं भूलूंगा। इस हार ने हमें इतना हिलाकर रख दिया कि हम पूरी रात सो नहीं पाए। हमने तय किया कि इनसाइड राइट पर खेलने के लिए INS दारा को तुरंत भारत से हवाई जहाज से बर्लिन बुलाया जाए। जर्मनी के खिलाफ फाइनल मैच 14 अगस्त 1936 को खेला जाना था, लेकिन उस दिन बहुत बारिश हो गई, इसलिए मैच अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला गया। मैच से पहले मैनेजर पंकज गुप्ता ने अचानक कांग्रेस का झंडा निकाला, उसे सभी खिलाड़ियों ने सैल्यूट किया। उस समय तक भारत का अपना कोई झंडा नहीं था, वो एक गुलाम देश था, इसलिए यूनियन जैक के तले ओलंपिक खेलों में भाग ले रहा था। बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में उस दिन 40,000 लोग फाइनल देखने के लिए मौजूद थे। देखने वालों में बड़ौदा के महाराजा और भोपाल की बेगम के साथ साथ जर्मन नेतृत्व के चोटी के लोग मौजूद थे। हाफ टाइम तक भारत सिर्फ 1 गोल से आगे था। इसके बाद ध्यानचंद ने अपने स्पाइक वाले जूते उतारे और नंगे पांव खेलने लगे। इसके बाद तो गोलों की झड़ी लग गई। दारा ने बाद में लिखा, 6 गोल खाने के बाद जर्मन रफ हॉकी खेलने लगे। उनके गोलकीपर की हॉकी ध्यानचंद के मुंह पर इतनी जोर से लगी कि उनका दांत टूट गया। उपचार के बाद मैदान में वापस आने के बाद ध्यानचंद ने खिलाड़ियों को निर्देश दिए कि अब कोई गोल नहीं मारा जाए, सिर्फ जर्मन खिलाड़ियों को यह दिखाया जाए कि गेंद पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। इसके बाद हम बार बार गेंद को जर्मन डी में ले जाते और फिर गेंद को बैक पास कर देते। जर्मन खिलाड़ियों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया और उसमें 3 गोल ध्यानचंद ने किए। ध्यानचंद के पुत्र और म्यूनिक ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता अशोक कुमार ने बीबीसी को बताया, 72 की बात है, मैं प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर हमारी टीम मौजूद थी ग्राउंड के ऊपर और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एकाएक मैंने देखा कि एक स्ट्रेचर के ऊपर एक शख्स चले आ रहे हैं, लोग उनको लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, इंक्वायर किया कि अशोक कुमार कौन है, तो उन्होंने पता तो मुझसे मिलने आए और उसके बाद वो इतने भावपूर्ण तरीके से उन्होंने मुझसे बातें करी ध्यानचंद के बारे में। और उस टाइम की कटिंग्स जो 36 की कटिंग्स जर्मन में निकली थी वो उन्होंने मुझे दिखाई, और एक बंडल जो था वो पूरा दिखाया कि ये तुम्हारे पिताजी ध्यानचंद, फादर वाज लाइक दिस लाइक दैट, लाइक छोटी टूटी फूटी अंग्रेजी में, बट आई कुड अंडरस्टैंड क्या कहना चाहते हो। तो ध्यानचंद के अंदर ऐसी क्या खास बात रही होगी उस जमाने में, 36 में ब्रिटिश आर्मी में रहे और सिपाही से मेजर के पद तक पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ी बात उस जमाने में, जबकि हम गुलाम देश के निवासी थे। लेकिन उन्होंने भी उतनी महत्ता दी उनको कि एक मामूली सिपाही को उन्होंने एक ऑनरी मेजर का पद दिया। भारत लौटने के बाद ध्यानचंद के साथ एक मजेदार घटना हुई। फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर ध्यानचंद के फैन थे। एक बार मुंबई में हो रहे एक मैच में वो अपने साथ नामी गायक कुंदनलाल सहगल को ले आए। ध्यानचंद पर लिखी एक किताब में निकेत भूषण लिखते हैं, हाफ टाइम तक कोई गोल नहीं हो पाया। सहगल ने कहा कि उन्होंने दोनों भाइयों का बहुत नाम सुना है। मुझे ताज्जुब है कि आप में से कोई आधे समय तक एक गोल भी नहीं कर पाया। रूप सिंह ने तब सहगल से पूछा कि क्या हम जितने गोल मारें उतने गाने हमें आप सुनाएंगे। सहगल राजी हो गए। दूसरे हाफ में दोनों भाइयों ने मिलकर 12 गोल दागे।
लेकिन फाइनल विसिल बजने से पहले सहगल स्टेडियम छोड़कर जा चुके थे। अगले दिन सहगल ने अपने स्टूडियो तक आने के लिए ध्यानचंद के पास अपनी कार भेजी, लेकिन जब ध्यानचंद वहां पहुंचे तो सहगल ने कहा कि गाना गाने का उनका मूड उखड़ चुका है। ध्यानचंद बहुत निराश हुए कि सहगल ने नाहक ही उनका समय खराब किया। लेकिन अगले दिन सहगल खुद अपनी कार में उस जगह पहुंचे जहां उनकी टीम ठहरी हुई थी और उन्होंने उनके लिए 14 गाने गाए। ना सिर्फ गाने गाए बल्कि उन्होंने हर खिलाड़ी को एक एक घड़ी भी भेंट की। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।